Welcome to Tech Unlock. In this video, we are going to see types of hybrid system. Okay, so there are three types of hybrid system. We are going to see one by one. Okay, so first type is sequential hybrid systems. Okay, in that the first point is in it all the technologies used in pipeline fashion. So this technology uses pipeline fashion. Okay, you can see in the diagram as well. Figure 1 is of sequential hybrid system. In that pipeline structure is formed. Means technology 1 is on the upper edge and the technology B is on the lower edge. Okay, so our input is passes through first technology, then the processing on the input is happen on the technology A, and that data will be provided to the technology B. So again technology B process that data which is given by the technology A and our output is formed. Okay, so here pipeline like structure is formed. So as justified to their name, a sequential hybrid system, the sequential manner, the pipeline fashion they follow. Next point is the output of one technology became the output of another technology. Okay, I illustrate it before that one output of first technology will be given as an input to the second technology, and then second technology process that input which is given by technology A, and our output is formed. Our final output is formed. Okay, next is this kind of hybridization form is one of its weakest. Okay, so as compared to the other technologies, means as compared to auxiliary or embedded hybrid technology, this is one kind of weakest form of technology. How it is weakest? Because it does not integrate different technology into a single unit. Okay, so their diagram or their structure is their weakest point. Why? Because it uses separate technology for processing. It does not include a one single unit for both technology. Means in general they does not combine their selves. Okay, so that's why it is not that effective, or even it is very much slow actually. Okay, next point is example of the sequential hybrid system. Genetic algorithm preprocessor. Okay, GA preprocessor is an example for the sequential hybrid system which obtains the optimal parameter such as initial weights, threshold, learning rates. Okay, you are familiar with this concept: initial weights, threshold and learning rates etc, and hand over these parameters to a neural networks. Okay, so we are talking about two technology here. First is genetic algorithm preprocessor, which can be completed or which can be come in technology A, and the second technology which is neural network which comes in technology B, and the operation is formed and our output is produced. Okay, so that's all in this technology sequential hybrid system. Next type is auxiliary hybrid systems. In this type, a technology treats another technology as a subroutine. Okay, this is a main point actually. Subroutine means what? Here you can see in the technology A is, you can say, first technology from which our input is passes, and technology B is a sub technology, or we can say subroutine. Okay, it is actually whole technology, but we called or we term it as a subroutine. Okay, so we term it as a subroutine and call it to process or generate whatever information needed by it. Okay, means what they are trying to say is, first technology processes input according to their way. Okay, first technology processes input or manipulate input according to their implementation, and that technology gives the output to the technology B. Means what? Technology A gives the output to technology B. So the input processed by first technology will be given as an output to the second technology. So technology B processes that input and then produces the result and then again given to the technology A. Okay, so what I am trying to say, our original input will be given to technology A. Technology A will process on that data, and that data will be provided to technology B. Then technology B again process that data according to their implementation, and then the result will again produces or given to the technology A. Okay, so the final result will be handed over to the technology A, and the technology A generates the final output. Okay, so this is the simple implementation of an auxiliary system. Okay, so I hope you get my point. Here they have given an example to the auxiliary system.
a neurogenetic system, for example, a neurogenetic system in which neural network employs a genetic algorithm to optimize its structural parameter, that is parameter which define neural networks architecture. So here technology A play the role of neural network system which employs a genetic algorithm to optimize its structural parameter. Means technology A produces the result which given to technology B. In that, technology B is actually a genetic algorithm implementation to optimize the structural parameter. So the parameter which is defined by neural networks architecture, means our first technology is neural network, then second is genetic algorithm. The parameter given by neural network is given to the technology B, which is genetic algorithm, and then again hand over that parameter to the technology A, and the result or the output is produced by system. Okay, so here is the example of neuro system as well as genetic algorithms combinations. Okay, because it is the hybrid system of both the technologies and their implementation is different from the previous one. Previously they uses the pipeline technology fashion, and here they uses the different fashion. Okay, they uses the subroutines. Okay, so our next type is embedded hybrid system. Okay, embedded hybrid system. In that, the first point is, in it two technologies are integrated in such a way that appears intertwined. In this, the two technologies are actually combined in such a way that they are intertwined. Intertwined means what? They are overlap, or you can say that it is combined. Actually it is combined. Okay, so in the previous technology you don't see the diagram like combination. Here the two separate technologies are working actually, but here the intertwine or combinations are actually using, means one technology you can say that it is actually combination of two big technology which forms the one big technology. Okay, so here the fusion is so complete that it would appear that no technology can be used without the other. Okay, so fusion means the combination in such a way that no technology can be work without other. Okay, so the fusion is such a immerse that the one technology cannot play its part individually. So the both technologies are needed because it is the fusion actually. Okay, so no technology can be used without the other for solving problems. Okay, as in figure 3 depicts system schema. So here you can see in the diagram 3 an embedded systems for the both technologies fusion, technology A and technology B. Okay, so in the name you can see embedded hybrid system. So in the embedded system, you actually know the embedded system, it is actually a hybrid system of software plus hardware. Okay, so here it is the actually hybrid system of hardware plus software. So you can say in the embedded system, you know already that the hardware is the main component as well. Okay, so here the combination of hardware plus software, they combinedly producing the powerful tool or powerful system. Okay, here the combination of software and hardware is produces the powerful tool for the both technologies. Okay, okay, for example of the hybrid system, neural network plus fuzzy logic. Okay, so here they are using two technologies, neural network plus fuzzy logic. Here hybrid system that has neural network which receives information, processes it and generates fuzzy output as well. Okay, so here neural network take the information, means receiving of information is done by neural network, and then processing on that information is also done by neural network, and then processes it and then generates fuzzy output as well. Okay, and then fuzzy output is also done as well, and these two operations are done combinedly because this is actually not different technology. In the diagram you can see that it is fusion, so these two operations are not distinct, these two operations are actually combined. Okay, so this is the simple technology, you can say embedded hybrid system. Okay, so three diagrams are there or three technologies are there for the types of hybrid system. First is sequential hybrid system, in that pipeline structure is used. Second is auxiliary system, in that subroutines is used, means main technology, and under that technology B is working. Okay, and then third technology is figure 3 of embedded system, in that overlapping is done, or you can say that fusion is done. Okay, okay, so these are the three types of hybrid systems. Okay, next point is application of hybrid systems. Okay, so our next point is application of hybrid systems. Okay, so let's see
फर्स्ट पॉइंट इज हाइब्रिड सिस्टम अटेम्प्ट्स टू कंबाइन बेनिफिट्स ऑफ मोर देन वन सिस्टम टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर्ड ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइब्रिड सिस्टम क्या करता है आपका कि कंबाइन किया जाता है। हाइब्रिड मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिस्टम, टू और मोर देन टू सिस्टम, ओके, टू और मोर देन सॉफ्ट कंप्यूटिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पे आपके 3 सिस्टम है। एक है आपका ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसे हम कहते हैं, सेकंड है आपका फजी लॉजिक और थर्ड है हमारा जेनेटिक एल्गोरिदम्स। ओके, सो इन 3 सिस्टम में से 2 या 2 से ज़्यादा आपकी सिस्टम क्या होती है, कंबाइनली वर्क करती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ओके, दैट रिक्वायर्ड ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। क्योंकि ये सिस्टम आप कैसे बनानी है, इंटेलिजेंट सिस्टम आपको बनानी है विच कैन सॉल्व दी real world problem compares to the that requires human like intelligence. Okay, next point is hybrid system can be used in almost all the areas ranging from medical science, engineering, aviation, image processing, business appliances, ओके, ETC एक्सेट्रा, फ्यू ऑफ देम एज बिलो। तो यहाँ पे देखिए आपके अलग अलग यहाँ पे सिस्टम है। मेडिकल साइंस फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, एविएशन मतलब आपके फ्लाइट सिस्टम हो गई, नेक्स्ट आपकी इमेज प्रोसेसिंग, बिजनेस एप्लीकेशंस। तो इन सभी में क्या होता है आपका हाइब्रिड सिस्टम यूज़ होती है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टू सिस्टम्स आर क्या होते हैं, कंबाइनली यूज किए जाते हैं। तो सम ऑफ देम यहाँ पे एग्जाम्पल्स या एप्लीकेशन दिए हैं। फर्स्ट है यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल। फर्स्ट पॉइंट देखिए, हाइब्रिड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स प्रोवाइड मोर रोबस्ट एंड रिलायबल प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल्स। ठीक है, तो इनके बहुत सारे एडवांटेज है, इसमें से एक है रोबस्ट एंड रिलायबल प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल्स। ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं देन स्टैंड अलोन ऐप मॉडल्स। स्टैंड अलोन मतलब क्या है, सिंगल मॉडल जो आपका सिर्फ कोई भी एक आपकी स्ट्रेंथ क्या करेगा यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या है, ये बेटर है कि आप क्या करें, हाइब्रिड सिस्टम यूज़ करें। क्योंकि क्या होता है, एक सिस्टम के अपने एडवांटेज होते हैं और सेकंड सिस्टम के अपने एडवांटेज होते हैं। लेकिन जब आप हाइब्रिड सिस्टम बनाते हैं तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, यहाँ पे कंबाइनली वर्क करती है आपके हाइब्रिड सिस्टम में। तो यहाँ पे एक पावरफुल मशीन क्या हो जाता है, बन जाता है, पावरफुल सिस्टम यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, एज प्रोसेस कंट्रोल इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री फॉर कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम आपकी वर्क करती है क्योंकि प्रोसेस कंट्रोल में क्या होता है आपका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आते हैं। जैसे आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो जिसमें क्या होती है, कंट्रोलिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम पैरामीटर्स क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री आप लीजिए, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, कंट्रोलिंग मशीनरी या जो भी है, आपको डिफरेंट टाइप्स के आपको कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होते हैं यहाँ पे बनाने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेटिंग, और यहाँ पे हर एक सिस्टम की, हर एक इंडस्ट्री की अलग नीड होती है। ठीक है, और जो क्या है कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाने के लिए यहाँ पे ये हेल्पफुल है क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होंगे, इंटेलिजेंटली वर्क करने चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेटिंग दिस टेक्निक्स इन्हांसेस द ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड लेसन वीकनेस। ठीक है, मैंने अभी बताया कि दो सिस्टम अगर इंटीग्रेट की तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, मतलब ये क्या बन जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन जाएगी। स्ट्रेंथ क्या होगी यहाँ पे, एनहांस होगी, और वीकनेस क्या होगा, कम होगा, बाय हेल्पिंग टू सॉल्व ओवरऑल कंट्रोल प्रॉब्लम इन इफेक्टिव वे। और आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, इफेक्टिव वे द्वारा सॉल्व होगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज फजी लॉजिक विथ जेनेटिक एल्गोरिदम। ठीक है, तो फजी लॉजिक प्लस जेनेटिक एल्गोरिदम यहाँ पे कंबाइन किया है टू कंट्रोल द डायरेक्ट टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्शन मोटर आपको पता है, ठीक है, हमारे फैन में मोटर होता है, इंडक्शन मोटर जैसे हम कह सकते हैं, या फिर आपके एग्रीकल्चरल यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनमें मोटर यूज़ होती है। ठीक है, तो उसका टॉर्क कंट्रोल करने में यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होती है आपकी ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। टॉर्क मतलब एज अ पावर आप कह सकते हैं। ठीक है, कितनी पावर सप्लाई प्रोवाइड करनी है, यानी आपकी मोटर कितने स्पीड से क्या होगी, यहाँ पे रोटेट होगी। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड एप्लीकेशन है मेडिकल इमेज क्लासिफिकेशन। फर्स्ट पॉइंट है, image classification is extensively used in medical science in that the abnormal images are differentiated from normal ones. ओके, सो आपके मेडिकल फील्ड में भी ये क्या होता है, आपकी इमेज प्रोसेसिंग या इमेज क्लासिफिकेशन में ये काम आता है आपका हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें से आपके एबनॉर्मल इमेज, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं है वो इमेज आपके नॉर्मल से क्या करना, क्लासीफाई करना। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पॉइंट है, रिसर्चर्स हैव प्रूव्ड दैट हाइब्रिड सिस्टम सच एज ANN यानी आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद द इंटीग्रेशन ऑफ फजी और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विद जेनेटिक एल्गोरिदम। ठीक है, एक तो आर्टिफिशियल प्लस फजी या आपकी आर्टिफिशियल प्लस आपकी जेनेटिक एल्गोरिदम गिव्स बेटर रिजल्ट देन द स्टैंड अलोन सिस्टम। ठीक है, एक सिंगल सिस्टम से ये क्या है, आपकी ये कॉम्बिनेशन आर्टिफिशियल प्लस जेनेटिक या आर्टिफिशियल प्लस फजी, इनका कॉम्बिनेशन क्या है, कोई भी एक सिस्टम का
क्या है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, बेटर रिजल्ट्स क्या करता है यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यही थे आपके एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिड सिस्टम्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिड सिस्टम्स। Okay, so our next point is example of hybrid systems. So in that the first example is Neuro-fuzzy hybrid system, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे Neuro-fuzzy hybrid system। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ प्रपोज बाय JSR जैंग। ओके, JSR जैंग द्वारा ये क्या है, प्रपोज किया गया है। द सिस्टम डिटरमाइंस इट्स पैरामीटर बाय प्रोसेसिंग डेटा सैंपल्स विद द हेल्प ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग किस पे होती है, पैरामीटर पे, पैरामीटर्स जिसे हम कहते हैं डेटा सैंपल्स, किसके द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है, आपके लर्निंग एल्गोरिदम द्वारा, जो कहाँ से लिए जाते हैं, आपके न्यूरल नेटवर्क थ्योरी द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क थ्योरी मतलब क्या है, न्यूरल नेटवर्क का आपका क्या है, यहाँ पे टेक्निक यहाँ पे यूज़ की जाती है। ओके, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें क्या होते हैं, हम क्या करते हैं न्यूरल नेटवर्क में, हम पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं और एज वेल एज हम प्रीवियस डेटा से क्या करते हैं, यहाँ पे पैटर्न एक रिकॉग्नाइज करते हैं और आपका रिजल्ट क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। तो आपके डेटा सैंपल्स पे क्या होगी, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, कुछ पैटर्न्स यहाँ पे फाइंड आउट किए जाएंगे यहाँ पे आपके लर्निंग एल्गोरिदम द्वारा, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क आता है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है दिस सिस्टम्स आर यूज टू परफॉर्म मैपिंग विथ सम डिग्री ऑफ इम्प्रिसिजन, ठीक है। और इन सिस्टम में क्या होता है, आपका मैपिंग विथ सम डिग्री ऑफ इम्प्रिसिजन, सम डिग्री ऑफ इम्प्रिसिजन होगा, कुछ अनसर्टनिटी होगी, क्योंकि इसमें क्या आया है, आपका फजी आया है। और आपको पता है फजीली रिजल्ट क्या होते हैं, कुछ आपके यहाँ पे आते हैं, हमने एग्जाम्पल भी देखा था डॉक्टर पेशेंट प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे फजीली क्या होता है, यहाँ पे इम्प्रिसिजन होता है फजी सिस्टम में, कुछ आपकी अनसर्टनिटी होगी, सम काइंड ऑफ इम्प्रिसिजन यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम स्ट्रांग बन जाती है आपकी न्यूरल नेटवर्क से जोड़ने के बाद, ठीक है। सम डिग्री ऑफ इम्प्रिसिजन होगा, फिर भी ये क्या है, एक स्ट्रांग सिस्टम बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 2 वेज टू डू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आपका ये कॉम्बिनेशन करने के लिए यहाँ पे 2 टाइप्स है, मतलब 2 तरीके से यहाँ पे क्या होगा, कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंबाइनिंग न्यूरल नेटवर्क विथ फजी कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका न्यूरल नेटवर्क किससे कंबाइन किया जा रहा है, आपके फजी कैपेबिलिटीज से, देयर बाय इंक्रीजिंग द नेटवर्क एक्सप्रेसिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए आपका फजी लॉजिक की कैपेबिलिटीज कहाँ पे ऐड हो रही है, यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क में। तो यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क क्या होगा, यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यही कहा है, इंक्रीजिंग द नेटवर्क एक्सप्रेसिवनेस यहाँ पे बढ़ेगा, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ेगी, टू एडेप्ट टू सर्टन इन्वायरमेंट, मतलब किसी इन्वायरमेंट में खुद को एडेप्ट करने की यहाँ पे कैपेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके फजी में कुछ अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। इनकम्प्लीट डेटा हो फिर भी यहाँ पे रिजल्ट आपका प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क की स्ट्रेंथ क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। ओके, फजी की कैपेबिलिटीज किस में ऐड हो रही है, इसमें न्यूरल नेटवर्क्स में। सेकंड देखिए, टू अप्लाई न्यूरल नेटवर्क्स लर्निंग कैपेबिलिटीज टू फजी सिस्टम। और यहाँ पे देखिए सेकंड टाइप में क्या हो रहा है, मतलब सेकंड हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा है, न्यूरल नेटवर्क आपका किस में ऐड हो रहा है, न्यूरल नेटवर्क्स की लर्निंग कैपेबिलिटीज किस में ऐड हो रही है, आपके फजी सिस्टम में, सो दैट फजी सिस्टम बिकेम मोर एडेप्टिव टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, न्यूरल नेटवर्क के जो भी कैपेबिलिटीज है, पैटर्न रिकॉग्निशन हो गया, प्रीवियस हिस्टोरिकल डेटा क्या हो गया, एनालिसिस हो गया, तो इससे क्या होगी, आपकी फजी सिस्टम की क्या होगी, यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। फजी सिस्टम बिकम मोर एडेप्टिव, और ये मोर एडेप्टिव बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। नेक्स्ट देखिए, दिस मेथड इज कॉल्ड एज न्यूरल नेटवर्क ड्रिवन फजी रीजनिंग, ठीक है। इस मेथड को हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क ड्रिवन फजी रीजनिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ न्यूरो फजी हाइब्रिड सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इजी टू कंसेप्चुलाइज एंड यूजर फ्रेंडली, ठीक है। इजी टू कंसेप्चुलाइज है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, कंसेप्चुलाइज इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्ट्रक्चर, कंसेप्ट वगैरह जो भी है आप क्या कर सकते हैं, इजीली यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एंड यूजर फ्रेंडली है, ठीक है। यूजर फ्रेंडली वे टू डिजाइन नॉन लीनियर कंट्रोलर, और यूजर फ्रेंडली वे है नॉन लीनियर कंट्रोलर्स डिजाइन करने के लिए, ठीक है। जो भी आपके ट्रेडिशनल कंट्रोलर चलते आ रहे हैं नॉन लीनियर, तो उसे डिजाइन करने में भी क्या है, ये फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है। नेक्स्ट देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एकेडमिक रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एकेडमिक रिसर्च यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है इस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, रिसर्च यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है। आपको अगर ये सिस्टम बनानी है तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए आपको बहुत सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है न्यूरल नेटवर्क का, ऑफ न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट देखिए, एंड एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस नॉलेज ऑफ फजी सिस्टम अवेलेबल, ठीक है। और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी अवेलेबल है आपका एक्सप्लिसिट ऑफ प्रोसेस नॉलेज,
कि आपकी प्रोसेस का नॉलेज, मतलब ये फजी सिस्टम आपकी कैसी वर्क होती है, ये भी आपका यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, एकेडमिक रिसर्च और आपका इवन एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे फजी सिस्टम का अवेलेबल है, जो क्या है इसका एडवांटेज। सेकंड देखिए डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में देखिए फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड एनालिसिस इज अवेलेबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपकी इंफॉर्मेशन यानी आपका डेटा अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे एनालिसिस मतलब उस पर एनालिसिस आपके ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लिमिटेड एनालिसिस हुए हैं अब तक, इज अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट है डिफिकल्ट टू कंबाइन मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है, मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, मल्टीपल लेयर्स का अगर न्यूरल नेटवर्क होगा तो यहाँ पे यह आपका सिंगल हैंडेडली ये क्या कर सकता है, इफिशिएंटली वर्क कर सकता है मल्टी लेयर का आपका न्यूरल नेटवर्क। लेकिन ये आपको किससे ऐड करना है, आपके क्लासिकल कंट्रोलर से। मतलब आपके जो भी ट्रेडिशनल कंट्रोलर है, आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करना चाहते हैं, कैपेबिलिटीज एडेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आपके क्लासिकल कंट्रोलर जो भी है उसमें हम ऐड करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आपके फजी सिस्टम में, तो ये क्या बन जाता है, थोड़ा हार्ड बन जाता है या डिफिकल्ट बन जाता है, जो क्या है इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, डिफिकल्ट टू कंबाइन है मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क विथ क्लासिकल कंट्रोलर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सेकंड हाइब्रिड सिस्टम एग्जाम्पल। ओके, सो आवर लास्ट पॉइंट इज सेकंड एग्जाम्पल ऑफ द हाइब्रिड सिस्टम। हियर सेकंड एग्जाम्पल इज जेनेटिक न्यूरो हाइब्रिड सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए जेनेटिक न्यूरो हाइब्रिड सिस्टम में फर्स्ट पॉइंट है जेनेटिक एल्गोरिदम्स आर यूज टू इनकोड द पैरामीटर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क एज अ स्ट्रिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नेटवर्क दैट इज क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको जेनेटिक एल्गोरिदम पता है, ये किससे इंस्पायर है, आपके बायोलॉजी से इंस्पायर है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, आपके जेनेटिक्स होते हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग टर्म्स आते हैं, म्यूटेशन आता है, क्रॉसओवर आता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके स्ट्रिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ नेटवर्क को, यानी आपके न्यूरल नेटवर्क्स में से कोई एक स्ट्रिंग, कोई एक कंस्ट्रेंट ऑफ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे क्या कंसिडर किया गया है, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यही बताया गया है कि अगर आपको जेनेटिक एल्गोरिदम आप यूज कर सकते हैं, इनकोड कर सकते हैं पैरामीटर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, मतलब आप न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर इनकोड करने के लिए आप जेनेटिक एल्गोरिदम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक एक आप नेटवर्क मतलब एक एक स्ट्रिंग ऑफ प्रॉपर्टीज आप क्या कर सकते हैं, एज अ क्रोमोसोम्स आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जेनेटिक एल्गोरिदम यहाँ पे क्रोमोसोम्स पे वर्क करता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सेट्स पे यहाँ पे काम करता है, और यहाँ पे क्रॉसओवर, म्यूटेशन या अलग अलग प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेटवर्क एज अ क्रोमोसोम्स एज अ सैंपल यहाँ पे क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये हम जेनेटिक एल्गोरिदम इस चैप्टर में यहाँ पे हम ज़्यादा देखेंगे, उसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जेनेटिक एल्गोरिदम एंड न्यूरल नेटवर्क हैव द एबिलिटी टू लोकेट द नेबरहुड ऑफ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्विकर देन अदर कन्वेंशनल सर्च स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी एबिलिटी क्या है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, टू लोकेट नेबरहुड ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्विकर देन अदर कन्वेंशनल सर्च स्ट्रैटेजीज। ठीक है, आप कोई भी कन्वेंशनल सर्च स्ट्रैटेजी लीजिए, जो आपकी ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी होगी, जो अब तक चलती आ रही है कन्वेंशनली, तो यहाँ पे उससे क्या है, ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशंस क्विकली फाइंड आउट करता है विद द हेल्प ऑफ नेबरहुड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग सेट्स के सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी होते हैं, आपके जेनेटिक्स में हमने देखा है, तो यहाँ पे उसकी कैपेबिलिटी और बढ़ जाती है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क सिस्टम, तो आपके जेनेटिक्स प्लस न्यूरल आपका कंबाइन हो गया है, इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे कन्वेंशनल सर्च से क्या होगा, ऑब्वियसली बेटर होगा, क्योंकि ये टू कंबाइंड स्ट्रैटेजीज क्या हो रहे हैं, यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। एडवांटेज देखिए, फर्स्ट एडवांटेज है जेनेटिक एल्गोरिदम हेल्प्स टू जनरेट बेटर पॉपुलेशन फ्रॉम गुड पेरेंट्स। ठीक है, जेनेटिक एल्गोरिदम आपको पता है कि पेरेंट चिल्ड्रन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मतलब एक पेरेंट से क्या होता है, आपका कॉम्बाइन होके यहाँ पे क्या होता है, चिल्ड्रन डिराइव किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए गुड पेरेंट से क्या होगा, दिस रिजल्ट क्लोज टू ग्लोबल ऑप्टिमम। ठीक है, तो आपका गुड पेरेंट से क्या होगा, ऑब्वियसली आपका रिजल्ट भी क्या होगा, यहाँ पे गुड होगा। ठीक है, मतलब आप क्या करते हैं, दो फिटेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं आप, और उनका क्या करते हैं, यहाँ पे म्यूटेशन करते हैं, क्रॉसओवर करते हैं। ठीक है, और बाद में आप क्या करते हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या है ऑब्वियसली क्या होगा, ग्लोबल ऑप्टिमम होगा, जो ज़्यादा ऑप्टिमम होगा। ठीक है, और न्यूरल नेटवर्क भी इसमें क्या करेगा, हेल्प करेगा, तो ऑब्वियसली ये क्या है, बेटर रिजल्ट्स क्या करेगा, यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जो क्या है इसका एडवांटेजेस है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट है इट इज रोबस्ट। रोबस्ट मतलब क्या है, इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब कोई भी पैरामीटर हो, ये क्या करता है, यहाँ पे
कोई भी पैरामीटर यहाँ पे मिस नहीं होता है, ठीक है। मतलब सेट ऑफ गुड रिजल्ट क्या होते हैं यहाँ पे इसके पास कलेक्शन होता है। और यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क भी ऐड होने की वजह से यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, रोबस्टनेस क्या हो जाता है, यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्ड है दे वर्क वेल इन पैटर्न मैचिंग। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग अप्लायंसेस में यहाँ पे वर्क होता है, एप्लीकेशंस में पैटर्न मैचिंग हो गया, स्पीच रिकग्निशन हो गया, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन हो गया, ठीक है। उसके बाद OCR यानी आपको पता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सिस्टम है हमारी। उसके बाद फ्रॉड्यूलेंट क्रेडिट कार्ड डिटेक्शन सिस्टम है जिसमें वीज़ा आता है, ठीक है। वीज़ा कार्ड्स आपको पता होंगे। नेक्स्ट देखिए इमेज कॉम्प्रेशन टेक्निक में भी क्या होता है, ये यूज़ होता है, ठीक है। जो क्या है इसके एडवांटेजेस है, जेनेटिक न्यूरो हाइब्रिड सिस्टम्स। नेक्स्ट देखिए डिसएडवांटेज क्या है इसके, इनपुट हैव टू बी अल्टर्ड बीइंग फेड टू दी नेटवर्क्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनपुट आपको क्या करना पड़ते हैं, अल्टर्ड करने पड़ते हैं। मतलब सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस इज नेसेसरी बिफोर इट इज फिट टू द नेटवर्क। नेटवर्क मतलब क्या है, न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क को देने से पहले आपको सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको न्यूरल नेटवर्क के समझने के लिए आपको उसके फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा आपको एक कन्वर्जन के लिए टाइम लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। वो ऑब्वियसली क्या है, डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप डायरेक्टली डेटा आप बिना प्रोसेस किए नहीं दे सकते आपके न्यूरल नेटवर्क को। नेक्स्ट देखिए सेकंड डिसएडवांटेज है इट इज़ फेल टू डिपिक्ट, ठीक है। तो किस में फेल होता है ये, विच नेटवर्क आर्किटेक्चर टू यूज़, ठीक है। नेटवर्क आर्किटेक्चर कौन सा यूज़ करना है, हाउ मेनी हिडन लेयर्स आर देयर। तो यहाँ पे ये आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे डिफिकल्ट बन जाता है। हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर देयर, तो यहाँ पर ये क्या है, डिफिकल्ट बन जाता है या फेल हो जाता है। हॉट एक्टिवेशन फंक्शन शुड आई यूज़, ठीक है। तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हॉट ट्रेनिंग एल्गोरिदम टू अप्लाई, तो ये क्या नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डिसएडवांटेज यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड हमारा एग्जाम्पल है हाइब्रिड सिस्टम का, फजी जेनेटिक हाइब्रिड सिस्टम, ठीक है। फजी लॉजिक विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम क्या किया है, यहाँ पे कंबाइन किया है। फर्स्ट पॉइंट देखिए, वी यूज जेनेटिक एल्गोरिदम टू डेवलप द बेस्ट ऑप्टिमाइज सेट ऑफ रूल्स टू बी यूज फॉर फजी इंटरफेरेंस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जेनेटिक एल्गोरिदम इन सच अ वे दैट डेवलप किया जाता है टू अचीव बेस्ट ऑप्टिमम सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, एंड टू बी यूज फॉर फजी इंटरफेरेंस सिस्टम्स। मतलब आपका जेनेटिक एल्गोरिदम बेस्ट ऑप्टिमाइज सेट ऑफ रूल्स क्या किया जाता है, यूज किया जाता है फजी इंटरफेरेंस सिस्टम के लिए, फजी इन्फरेंस सिस्टम के लिए। मतलब आपका जेनेटिक एल्गोरिदम किस में ऐड होता है, आपके फजी में ऐड होता है, और फजी आपका क्या करता है, वहाँ पे काम करता है। मतलब फजी की स्ट्रेंथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए GA यानी जेनेटिक एल्गोरिदम कैन आल्सो बी यूज टू ऑप्टिमाइज मेंबरशिप फंक्शन। मेंबरशिप फंक्शन हो मतलब किसी सिस्टम में अलग अलग मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। मशीन्स हो सकता है, यूज़र हो सकता है, अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट यहाँ पे अलग अलग मेंबर्स प्ले करते हैं। तो मेंबरशिप फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने में क्या है, ये यूजफुल है। नेक्स्ट देखिए द यूज ऑफ जेनेटिक एल्गोरिदम इज इन फजी क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए फजी क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपका जेनेटिक एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इन विच एन ऑब्जेक्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे क्लासिफाई किया जाता है, लिंग्विस्टिक वैल्यू से। बट टू फाइंड अप्रोप्रिएट सेट ऑफ फजी रूल्स इट इज चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। लेकिन अप्रोप्रिएट फजी रूल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, सेट ऑफ फजी रूल्स, तो ये क्या बन जाता है, चैलेंजिंग बन जाता है। फजी रूल्स मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए डॉक्टर पेशेंट प्रॉब्लम में आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम एनालाइज करने के बाद यहाँ पे फजीली क्या किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे हम ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये कंपलसरी यही आपको क्या करना है, बोलना है, ठीक है। तो ये क्या है, फजीली होता है, सम टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, 100% श्योरिटी नहीं होती। रूल्स मतलब क्या है कि हम क्या अप्लाई करेंगे वहाँ पे, ठीक है, क्या रूल्स होंगे आपके रिजल्ट को शो करने के लिए, मतलब यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूल्स डिफाइन करने होते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, और ये सिस्टम टू सिस्टम क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, ठीक है। मतलब अलग अलग ही होता है। आपके फजी रूल्स क्या होंगे, एक मॉड्यूल्स भी चेंज हो गया तो भी आपके फजी रूल्स क्या होंगे, यहाँ पे अफेक्ट करेंगे, हमको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, चैलेंजिंग टास्क है आपके फजी रूल्स क्या करने, डिफाइन करना। नेक्स्ट देखिए वन अप्रोच इज, मतलब आपको अगर फजी रूल्स यहाँ पे डिफाइन करना है तो यहाँ पे एक अप्रोच देखिए, वन अप्रोच इज यूजिंग एक्सपर्ट नॉलेज, ठीक है। आप एक्सपर्ट नॉलेज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल्स आपको ये डिफाइन करने पड़ेंगे कि आपकी सिस्टम कैसे वर्क करेगी, और ये रूल ही क्या करेंगे, एट द लास्ट क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपका सिस्टम
कितने एक्यूरेटली काम करता है। ठीक है, तो एक्सपर्ट नॉलेज की आप हेल्प ले सकते हैं एंड ट्रांसलेट इट इनटू सेट ऑफ फजी रूल्स, और उसे ही हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे फजी रूल्स में, बट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। और ये टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि ये रिसर्च वगैरह जो भी है तो ये थोड़ा क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, क्योंकि डिटेल्स में सब आपको ये करना पड़ेगा, सब कुछ आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और बाद में उसे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मतलब आपको थर्ड पार्टी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, आप खुद से नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अनदर अप्रोच क्या है, अनदर इज टू ऑब्टेन फजी रूल्स थ्रू मशीन लर्निंग। ठीक है, अनदर अप्रोच क्या है, विदाउट एक्सपर्ट नॉलेज आप क्या कर सकते हैं, मशीन लर्निंग कंसेप्ट के थ्रू यहाँ पे अडेप्ट कर सकते हैं, वेयर नॉलेज इज ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी सैम्पल केसेस। तो यहाँ पे देखिए सैम्पल केसेस से आपका नॉलेज क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मशीन लर्निंग मतलब क्या है, आप मशीन लर्निंग टेक्निक के थ्रू, आपके प्रीडिफाइंड टेक्निक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, सर्टन इनपुट्स दीजिए, वो क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा। और मशीन लर्निंग क्या है, आपको पता है इंटेलिजेंट सिस्टम की तरह काम करता है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, तो यही है हमारे एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है, तो हमारा चैप्टर भी, हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर यहीं पे और होता है। नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे हम हमारा सेकंड चैप्टर जो है हमारा फजी लॉजिक पे। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।